Hello guys, this is Amardeep Srivastava and welcome to my channel GateUP Simplified. In this lecture, I'm going to explain you all about the term that is known as carbon trading. What do you mean by the term? Carbon trading. This is the continuation of my lecture series on environment and ecology for UPSC examinations or for any examination in which environment and ecology is a part. Now, what do you mean by the term carbon trading? चलिए कार्बन ट्रेडिंग को समझते हैं कार्बन ट्रेडिंग होता क्या है तो बेसिकली कार्बन ट्रेडिंग इज द नेम गिवन टू द एक्सचेंज ऑफ एमिशन परमिट्स अब इसका मतलब समझते हैं कि कार्बन ट्रेडिंग इज द नेम गिवन टू द एक्सचेंज ऑफ परमिशन परमिट्स लाइकवाइज जो कार्बन एमिटेंट्स हैं जो भी कंट्रीज हैं कार्बन की इमिशन कर रही हैं आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड you all about global warming potential global warming things and as well as the Kyoto as well as Bali conferences तो कार्बन ट्रेडिंग का बेसिकली मतलब ये हुआ कि आप जो भी कार्बन कर रहे हो कार्बन को इमिट कर रहे हो एटमॉस्फेयर में फॉर NX1 कंट्री एज वेल एज फॉर द NX2 और NX3 कंट्री लाइक वाइज फॉर NX1 कंट्री लाइक यूएसए एंड रशिया फॉर NX2 countries like China and India and all. Okay, NX1 country mostly comprises of the developed nations like Russia and India, Russia and USA, and NX2 comes the developing country which uses the carbon emissions for their development. Okay, now carbon trading I have already explained the meaning of carbon trading. Now it is एक तरीके का ट्रेड होगा ये किस तरीके से ऑन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग factors like if you have to develop you will have to use different carbon emitting component like coal and all things for that you will have to you will have to emit carbon dioxide in the atmosphere so there is a trading of carbon offsets or carbon in this carbon trading. Now this exchange may takes place within the economy or may take from international transactions. Likewise you can also say that if in a country like USA, if there is a thermal power plant generation of let's say 800 megawatt, okay, there is a thermal plant setup of 800 megawatt. If the country is generating 800 megawatt from a thermal power plant, on let's say if there is a CO2 emittent of 2000 metric ton, let's say 2000 metric ton, तो अगर 2000 मीट्रिक टन की अगर वो इमिटेंट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में देन उनको कॉम्पनसेट करना होगा दो तरीके से या तो वो इंटरनली कॉम्पनसेट करे बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज और बाय प्लांटिंग द एब्जॉर्बर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स दैट इज टू बैलेंस द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ देयर प्लेसेस. ओके, सेकंड थिंग ये है कि या तो वो अपने इंटरनल कर सके अपने कंट्री में या फिर विद इन द बाउंड्री या इंटरनेशनल बाउंड्री में भी जाके वो कर सकते हैं. लाइकवाइज जैसे जान लो जैसे अमेरिका अगर 800 मेगावाट का एक प्लांट लगा रहा है जिसकी वजह से देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच दे आर releasing in the atmosphere. What America can do is that America visit the South African country and they will propose something like they are going to plant 1 lakh of trees that will absorb the CO2 from the atmosphere that can also minimize the things in carbon trading in context with the international boundaries with South Africa. I have just given an example. Okay, now I have already explained that the carbon trading is the name given to the exchange of emission permits and also this exchange may take place within the economy or may take the form of international transaction. This carbon trading can take place within the economy as well as the economy or may take from the international transaction. Okay, international transaction. Okay, there are two types of carbon trading. First is types of carbon trading is what? First is emission trading. First is emission trading and second one is what? Offset trading. Okay, there are two types of carbon trading. First one is emission trading, second one is offset trading. Okay, we will learn about both emission trading as well as offset trading in the next slide. Now let's explain the first bit, that is emission trading. Emission trading, this is also known as cap and trade.
कैप एंड ट्रेड। तो समझते हैं ये इमिशन ट्रेडिंग होता क्या है, इसको हम लोग कैप एंड ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्टली इमिशन ट्रेडिंग इज व्हाट, इमिशन परमिट इन is known alternatively as carbon credit for each annex 1 countries. Like for each annex 1 countries, I have already explained you about the annex 1 country. Annex 1 countries are USA, Russia, जो कि डेवलप्ड हो चुके हैं बट उनको फिर भी रिक्वायरमेंट है, कोल यूज कर रहे हैं बट उनको उन पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इंपोज किया गया क्योटो प्रोटोकॉल में एज वेल इन बाली एक्शन प्लान में। आप देख सकते हो मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाकर के मैंने इन दोनों को एक्सप्लेन किया अच्छे से। तो आप एक चीज जान लो कि एमिशन ट्रेडिंग और कैप एंड ट्रेड होता क्या है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ कार्बन क्रेडिट है, इसमें दो तरीके का होता है, एमिशन एंड ऑफसेट। आई एम एक्सप्लेनिंग एमिशन इन दिस स्लाइड, ओके। Emission permit is known alternatively as carbon credit. Okay, for each Annex 1 country, the protocol has assigned a fixed amount of carbon emission is in the agreement. Okay, हर एक जो डेवलप्ड कंट्री और एनेक्स 1 कंट्री है लाइक यूएसए एंड रशिया उनके लिए कार्बन जो इमिशन है, जो कार्बन इमिशन है वो फिक्स्ड रखा गया है, ठीक है। कि आप इतना ही इमिट कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में, आप पे लिमिटेशंस है इसकी, क्योंकि आप ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री हो, आप ऑलरेडी रेकलेस और असाइड फ्रॉम द सस्टेनेबल मैनेजमेंट आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेकलेस यूज कर चुके हो। तो आपको ये समझना होगा कि आपके लिए जो लिमिटेशंस है टू इमिट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, बिकॉज वी आर फेसिंग द वेरी सीरियस कंसर्न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन द एटमॉस्फेयर, ओके, ग्लोबल वार्मिंग ऑन अर्थ, ओके। सेकेंड थिंग इज दैट अगर आप मान लो इस पे बैन तो नहीं कर सकते, बिकॉज डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड in a sudden manner, so you can say that first thing is that they have to be fixed, they have to be very much precise and concerned about a fixed amount of carbon emission in for the agreement, and the amount is actually the amount of emission which is to be reduced by the concerned countries, okay. Now on the other hand, it implies that the country was permitted to emit the remaining amount. This emission allowance is actually one kind of carbon credit. Likewise, I am saying you all is that if America has to counterfeit or if America has to step down few of the carbon emittent, likewise अगर उनको घटाना है थोड़ा सा कार्बन एमिशन एटमॉस्फेयर से, तो मान लो एक्स अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन घटाना है यूएसए को, तो उनके पास अगर मान लो पहले से वाई एमिट करते थे, तो जो उन्होंने सेव क्या किया, एक्स सेव किया, तो ये जो एक्स अमाउंट है ये डेवलपिंग कंट्री यूज कर सकते हैं, लाइक इंडिया, चाइना, अफ्रीका एंड ऑल। ये तो पुअर कंट्री में आ गए फिर भी, लेकिन यूज कर सकते हैं इस जो जो इन्होंने सेव किया है, जो इनको सेव करना है X% ऑफ एमिशन ऑन द एटमॉस्फेयर, वो ये लोग यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक तरीके से क्या कहेंगे, ट्रेड ऑफ, ठीक है। और इस यूनिट को हम लोग कार्बन इक्विवेलेंट कहते हैं। मतलब इसका इच यूनिट जो होगा, द टोटल अमाउंट ऑफ अलाउंस इज देन सब डिवाइडेड इनटू सर्टेन यूनिट्स. The units are expressed in terms of carbon equivalent. Each unit gives the owner the right to emit 1 metric ton of carbon dioxide or other equivalent greenhouse gases. Likewise, समझते हैं इसको अच्छे से। इसमें क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई एनेक्स 1 कंट्री है, उसने सेव किया मान लो एक्स अमाउंट ऑफ मेट्रिक टन CO2 इन द एटमॉस्फेयर, या तो CO2 समझ लो या फिर कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस, जो मैंने पहले बता चुका, मैं पहले वाली लेक्चर्स में बता चुका हूँ ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, आप जाके देख सकते हो। तो अगर वो सेव करते हैं, मान लो उनको वाई रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने वाई माइनस एक्स यूज किया, एक्स अमाउंट को उन्होंने सेव किया, तो वो क्या कर सकते हैं, इस टोटल जो सब्सिडाइज्ड और सबसे सब डिवाइडेड यूनिट है जो बच चुका है, उसको वो क्या करते हैं, वो दूसरी कंट्री को देते हैं, ठीक है। एक तरीके से अलाउंस है ये, ठीक है। तो ये जो इसकी जो यूनिट होगी, जिस यूनिट में ये देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कार्बन इक्विवेलेंट, ओके। इसको हम लोग कार्बन इक्विवेलेंट यूनिट कहते हैं, ठीक है। और 1 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर, और एक यूनिट क्या होगा, 1 मेट्रिक टन ऑफ CO2 और एनी अदर ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। ये समझ में आ गया, एमिशन ट्रेडिंग और कैप एंड ट्रेड समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड third most point is that offset trading. Carbon trading is of two types. Second type is offset trading, ठीक है। offset trading को हम लोग और क्या कहते हैं, कार्बन प्रोजेक्ट, and also known as credit trading, okay. Another variant of carbon credit is to be earned by a country by investigating some amount of money in such projects known as carbon projects, which will emit lesser amount of greenhouse gas in the atmosphere.
लाइकवाइज मानते हैं, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि रशिया में कहीं पे 800 मेगावाट की एक थर्मल पावर प्लांट इंस्टॉल किया गया, ठीक है। 800 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट को हम लोग इंस्टॉल किया वहां पे। इसकी कैपेसिटी थी इमिशन की, मान लेते हैं 500 कार्बन इक्विवेलेंट, ओके, जो कि एटमॉस्फेयर में 500 कार्बन इक्विवेलेंट को इमिट करेगी, ठीक है। अब इसी के रेस्पेक्ट में मानते हैं कोई एक अनदर कंट्री है, मान लेते हैं इंडिया, ठीक है। उसने एक 800 मेगावाट की विंड एनर्जी बनाई। विंड एनर्जी, विंड फॉर्म जनरेशन को बढ़ावा दिया उन्होंने 800 मेगावाट को, ओके। जो कि विंड फॉर्म क्या करेगा, कोई भी जनरेशन नहीं है, नियरली जीरो जनरेशन है, इमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का इन द एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो अब क्या करेगी, जो रशिया ने क्या किया, 500 कार्बन इक्विवेलेंट दैट इज 500 क्रेडिट एमिट किया एटमॉस्फेयर में, वहीं इंडिया क्या किया, सेव किया उसको। तो इंडिया यहां पर क्या कर रहा है, 500 कार्बन क्रेडिट अर्न कर रहा है, इसी को कहते हैं ऑफसेट ट्रेडिंग और अर्निंग ऑफ कार्बन क्रेडिट, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल था। हम किसी भी एक कंट्री में अगर कोई 800 मेगावाट, एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि 800 मेगावाट का अगर जनरेशन में वो लगाते हैं, जिसके कारण 500 कार्बन क्रेडिट दैट इज 500 किलो टन ऑफ कार्बन एमिशन इन द एटमॉस्फेयर, ओके। तो उसको वो लोग मैनेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इंडिया में अगर वहीं पे सेम 800 मेगावाट का एक जनरेशन कर रहे हैं वो लोग, लेकिन वहां पे क्या कर रहे हैं, उनका मानना ये है कि अगर हम जो कर रहे हैं उससे हमारा सेव अगर कर लिए, वो मान लीजिए हम जैसे कि विंड पावर प्लांट बना लिया, तो उन्होंने 5 क्रेडिट कार्बन क्रेडिट को सेव किया, तो एक वर्चुअल बैग में इंडिया 500 कार्बन क्रेडिट का मालिक हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग ऑफसेट ट्रेडिंग कहते हैं और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं अगर कोई नहीं मानता इन चीजों को, ठीक है, तो क्या क्या पेनाल्टीज हो सकती है, ठीक है। अगर इन चीजों को ना माना जाए तो नॉन कॉम्प्लियंस ऑफ कोइटो एंड पेनल्टीज। अगर कोइटो प्रोटोकॉल में मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था कि आप जाके देखोगे तो कोइटो प्रोटोकॉल को अगर अगर जिन एनेक्स 1 कंट्री और एनेक्स 2 कंट्रीज नहीं मानती हैं तो क्या दिक्कत, क्या क्या उनको फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। समझते हैं। लाइक मोस्ट थिंग इन लाइफ, फेलियर टू कंपाइल विद द प्रोटोकॉल कैरीज पेनल्टीज। ऑब्वियसली there is a binding agreement on Kyoto Protocol and Bali Action Plan, so you can say that there are some of the penalties. If a country does not meet the requirement for measurements and reporting, said countries loses the privilege of gaining credit through joint implementation project. Likewise, अगर कोई कंट्री फेल कर जाता है, जैसे मान लो रशिया फेल कर गया, ठीक है, किस चीज के लिए फेल कर गया, कार्बन क्रेडिट का जो इमिशन है उसको कम करने में, उसको बैलेंस नहीं किया, रेकलेस यूज किया, नॉन सस्टेनेबल वे में उन्होंने सब कुछ यूज किया, तो उनको इस बात की रिपोर्ट पेश करनी होगी, मतलब उनको देना होगा, ठीक है। अगर कोई एक कंट्री है, मान लो अगर वो एमिशन कैप को फुलफिल भी नहीं करती है और एक प्रयास भी नहीं करती है कि एमिशन कैप को कम करो, दैट इज इफ अ कंट्री गोज अबव इट्स एमिशन कैप and does not try to make up the difference through any of the mechanism available, then said country must make up the difference plus an additional 30% during the next period. अगर मान लो एक टाइम है, एक टाइम स्लॉट है, अगर उसमें अगर वो कार्बन क्रेडिट को सेव नहीं कर पाता है मान लो, या फिर वो इस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देता है कि कार्बन क्रेडिट और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को कम करना है, तो नेक्स्ट सीजन जो होगा उसको वो पहले वाला तो करना होगा प्लस 30% एक्स्ट्रा उसको कार्बन क्रेडिट बैंक में सबमिट करना होगा, ठीक है। जैसे मान लो रशिया या यूएसए है, वो 500 यूनिट ऑफ कार्बन क्रेडिट एक मंथ में उसको यूज करना है, बट वो मान लो 700 यूज किया, ठीक है, तो जो प्रेजेंट में यूज करेगा 200 प्लस एक्स्ट्रा, प्लस जो प्रेजेंट ईयर का होगा प्लस 30% एडिशनल, तो ये एक तरीके का पेनाल्टी है। और सेकेंड चीज है कि दोज कंट्रीज who are violating the cap of carbon credit can also be banned from participating in the कैप एंड ट्रेड प्रोग्राम। कैप एंड ट्रेड प्रोग्राम है कि आप रशिया में या फिर आप इंडिया में या फिर किसी डेवलपिंग कंट्री में जाके क्या मैनेज करते हो, वो उससे आपको बैन भी किया जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग बस इतना ही है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने कोयोटो एंड बाली एक्शन प्लान पढ़ाया, आप जाकर उसको देख सकते हो।